Hello student, welcome to Dakshina E-Classroom. We are going to discuss DT6 paper 2. आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन 1. In question 1 they have given find the number of carbon atom in the parent chain. तो इस केस में पहले हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा कि पेरेंट चेन कौन सा है. ठीक है, वी हैव 5 मेंबर रिंग, राइट. 5 मेंबर रिंग, इसके अंदर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है OH, एक ब्रोमीन प्रेजेंट है, एंड देन वी हैव लॉन्ग चेन, साइड चेन, जिसमें कि डबल बॉन्ड इस तरीके से दे रखा है. नाउ अगर हम लोग को कंसीडर करना है कि पेरेंट चेन कौन सा है, तो हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना होगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा है. दिस हाइड्रोक्सी इज और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है रिंग चेन के साथ, न कि साइड चेन के साथ में. तो इसलिए रिंग चेन इज गोइंग टू बी आवर पेरेंट चेन, न कि ये साइड चेन होगा. नंबरिंग कैसे जाएगा, तो 1 2 3 4 एंड दिस 5, राइट. So 5 is the number of carbon atom present in the parent chain. 5 will be correct answer for question number 1. Now see the question number 2. In question number 2 they have given how many among the given is more acidic than phenol. The phenol is this one, right? Phenol is this one. The phenoxide ion will be stabilized by resonance. यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखना पड़ेगा. तो आप 1 by 1 स्ट्रक्चर कंसीडर करते चलते हैं. पहली बात ये दे रखा है phenol with methyl group at para position. Now we know that this is all going to release electron to benzene via hyperconjugation effect as well as the plus I effect. These two effect will release electron. That means phenoxide ion will stability of phenoxide ion will decrease. That means this is going to be less acidic than phenol. Consider next one. Next one is our water. pK value for this one will be nearly 10 and pK value for this one is 15.7. Why? Because phenoxide ion in this case is stabilized by resonance, whereas such stability is not possible with hydroxide ion. So this is going to be less acidic than phenol, right? Next is our carboxylic acid with methyl group at ortho position. Now we know that any carboxylic acid, irrespective of group present, is going irrespective of nature of group, is going to be more acidic than phenol, right? So this is going to be more acidic. Next is our formic acid. Yes, it is also going to be more acidic than phenol. Then it is one is alcohol. Alcohol is even less acidic than phenol. Alcohols are even less acidic than phenol. Next is our sulfonic acid. Take the case of sulfonic acid. If you are considering sulfonic acid, the sulfonic acid is going to be even more stronger acid than carboxylic acid. So obviously it will be more acidic than phenol. We can consider this one also. See the next one. We have OH group and fluorine group at the para position. Now we know that fluorine is going to apply minus I effect on this benzene ring as well as the plus M effect. But because minus I effect dominate over its plus M effect, this particular compound is also going to be more acidic than phenol. Next see the this one COOH. Anyhow this is a carboxylic acid. We can consider this is going to be more acidic than phenol, right? See the another one. That is our basically CH2OH, right? This is alcohol. This will be not more acidic than phenol. Next see the carboxylic acid. That is our COOH, right? It will be also more acidic than phenol. See how many structure which are more acidic? 1 2 3 4 5 and 6. 6 are more acidic than phenol. The answer will be 6 for question number 2. Moving to question number 3. In case of 3, how many among the following will undergo carbocation rearrangement, right? Next देख लेते हैं इसमें. The first one, see the first one is, तो अगर हम लोग हाइड्राइड शिफ्ट करके भी यहाँ पे लाए, this is going to be once again secondary carbocation and with the less number of alpha hydrogen. Here the number of alpha hydrogen is 4. If we will shift the hydride ion, it will generate secondary carbocation, and once again the number of alpha hydrogen will be less than 4. It is going to generate 3 carbon. It will not undergo
रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट केस देखा जाए, नेक्स्ट केस अगर आप देखो तो दिस वन इज बेसिकली, इसमें कुछ रीअरेंजमेंट हो सकता है, नो, ऑलरेडी ये 3 डिग्री कार्बन एटम है और रिंग एक्सपेंशन या रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में नहीं सोचा जा सकता है। थर्ड वन इज CH3CO एंड CH3 पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज CH3। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये लोन पेयर के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे सोचने की बात नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग रीअरेंजमेंट के बारे में नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें, आपके पास में है CH3 एंड H, देन CH3 पॉजिटिव चार्ज विथ इथाइल ग्रुप। नाउ आफ्टर रीअरेंजमेंट hydride shift will occur. This hydride will move and it is going to generate more stable carbocation. How? Because the plus M effect of this nitrogen will stabilize this carbocation, right? So we will get this structure like CH, CH2, CH3, ethyl, right? This carbocation will stabilize by plus M effect of this nitrogen. We can observe rearrangement in this case. See the next one, this is our CH2 plus, right? In this case ring expansion will take place and it is going to generate this carbocation. Obviously this is going to be more stable. Last one is this is CH3 CH positive charge and OCH3, right? Now lone pair of this will stabilize the carbocation. We are not going to observe rearrangement in this case. So 2 cases are there, we can see rearrangement. In one case it is basically hydride shift, in the other case it is basically ring expansion. So 2 will be correct answer for question number 3. See the question number 4. In question number 4, what they have asked, the minimum pH required to prevent the precipitation of zinc sulfide, right? Zinc sulfide is basically Zn2 plus and sulfide ion, right, containing 0.01 molar ZnCl2. This will completely dissociate and it will generate 0.01 molar Zn2 plus and Cl minus in the solution. Now zinc sulfide will get precipitated. Now we have to consider S2S. Right? How many sulfide ion will be required for the precipitation? So Ksp we can write. Ksp is equal to concentration of Zn2 plus, right, into concentration of sulfide ion. Right? Ksp will be this one. Now Ksp is given, that is 10 to the power minus 21, right? And sulfide we have to find this one given, Zn2 plus will be 0.0 यानी कि 10 to the power minus 2. The sulfide ion required that will be 10 to the power minus 9. तो pH कितना होना चाहिए, उसके लिए क्या देखना होगा, आपको H2S देखना होगा. H2S dissociated to 2H and generated sulfide ion. We can write K is equal to K1 into K2, first dissociation constant and second dissociation constant. We can write as K1 into K2, that is equal to concentration of H plus square into concentration of sulfide divided by concentration of H2S, right? So sulfide ion is required, that is 10 to the power minus 19, H plus concentration square into 10 to the power minus 19 divided by H2S concentration, that is 0.1, and K1 into K2, that is 10 to the power minus 20. तो ये कितना आ जाएगा, H plus concentration will be basically 10 to the power minus 1, that is 0.1. So pH will be, how much pH will be? pH will be 1. So 1 will be correct answer for question number 4. See the question number 5. In question number 5 they have mentioned, among the following salt, how many salt undergo only anionic hydrolysis, जिसमें anion involve. Now अगर सोडियम क्लोराइड की बात करें, ना तो सोडियम हाइड्रोलिसिस में जाएगा ना तो क्लोराइड हाइड्रोलिसिस में जाएगा, बिकॉज बोथ आर द, दिस इज द जनरेटेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस, दिस इज जनरेटेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड.
तो दोनों का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसमें हाइड्रोलिसिस अमोनियम प्लस का होगा, ना कि क्लोराइड का, मीन्स कैटायनिक पार्ट का होगा। सी नेक्स्ट वन इज अमोनियम साइनाइड, राइट। तो दिस बेसिकली अमोनियम एंड साइनाइड एसियन इज वीकर, इवन वीकर एसिड, तो CN इसमें इसका भी हाइड्रोलिसिस होगा, कुछ एक्सटेंट तक अमोनियम का भी हाइड्रोलिसिस होगा, बट एनायनिक हाइड्रोलिसिस विल टेक्स प्लेस इन दिस केस। लास्ट वन इज KCl, K प्लस का नहीं होगा बिकॉज इट इज सॉल्ट ऑफ बेसिकली सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग, KCN इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो जो वीक एसिड है उसका हाइड्रोलिसिस अकर होगा। तो टू केसेस आर देयर वेयर वी कैन ऑब्जर्व एनायनिक हाइड्रोलिसिस, वन केस इज देयर वेयर वी कैन ऑब्जर्व कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, and in one case we are not going to observe anionic as well as the cationic hydrolysis, right? So 2 will be correct answer for question number 5. Next, see the question number 6. They have given the hydrolysis constant of aqueous solution of salt, that is ZnCl2, is given as KH is equal to Kw power x and Kv power y. We have to find out the value of x and y, ठीक है, सम ऑफ x and y। तो जिंक क्लोराइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो ये जनरेट करेगा, बेसिकली इसमें हाइड्रोलिसिस किसका होगा, क्लोराइड का तो होगा नहीं, Zn2 प्लस का हाइड्रोलिसिस होगा, वाटर के साथ ये फॉर्म करेगा ZnOH ट्वाइस एंड H प्लस 2H प्लस, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू हाउ मच, we can write as the concentration of zinc hydroxide into concentration of H plus square divided by concentration of Zn2 plus, right? This is the hydrolysis constant KH. Similarly, we can write Kb, Zn hydroxide is going to form zinc plus 2OH minus. We can write Kb is equal to concentration of Zn2 plus into concentration of OH minus divided by concentration of zinc hydroxide, right? अब एक और कांस्टेंट दैट इज Kw फॉर वाटर, वी कैन राइट Kw is equal to concentration of H plus into concentration of OH minus, right? अब ये एक्सप्रेशन फर्स्ट है, दिस एक्सप्रेशन सेकेंड, दिस इज एक्सप्रेशन थर्ड। तो हम लोग क्या करें, इसमें OH माइनस के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो KH इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वायर इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर, दिख रहा है आपको, डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ जिंक 2 प्लस इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस स्क्वायर। अब देखो इस टर्म में क्या क्या लिखा जा सकता है, इसको मैं लिख सकता हूं Kw का स्क्वायर, Kw स्क्वायर दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय Kv इज दिस वन, तो Kv ये हो जाएगा, तो आपका x हो जाएगा 2 एंड y हो जाएगा 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सी द नेक्स्ट वन, ठीक है, इसमें 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, x 238, बेसिकली दे हैव गिवन x 238 एंड दिस इज 98, राइट, 238 एंड 98। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका y 234, राइट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ y 234 एंड 96, और अल्फा हाइड्रोजन अल्फा मॉलिक्यूल जनरेट कर रहा है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल जनरेट कर रहा है। तो कितने अल्फा पार्टिकल आएंगे, ऑब्वियसली एक, जिसको में 4 और 2 लिखा जा सकता है, बेसिकली अल्फा इज डबली चार्जेस हीलियमेट, तो एक अल्फा पार्टिकल आ गया, वाई ये जनरेट हुआ। देन इसके बाद इन्होंने बीटा पार्टिकल जनरेट किया हुआ है, तो ये हो गया है आपका जेड दैट इज 234 एंड ये हो गया 97, क्योंकि बीटा पार्टिकल को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं E0 एंड -1, राइट। सिमिलरली वंस अगेन एक अनदर बीटा पार्टिकल जनरेट हुआ है जिससे बेसिकली
L फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो L234 एंड ये हो गया 98। अब उसके बाद यहाँ से 0 - 1, यहाँ से आपके L से फर्दर M में कन्वर्ट हो रहा है। M दे रहा है आपका 218 एंड दिस इज 90। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पूछा हुआ है, तो ये डिफरेंसेस देख लो। हीलियम डबली चार्जेस हीलियम एटम इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल, तो ये 2+ हो गया। इसको x मान लो, तो 2x इज इक्वल टू 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 98। तो x इज इक्वल टू हाउ मच? x इज इक्वल टू 4। तो 4 विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7, राइट। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 8. In question number 8 they have given if 3/4 quantity of radioactive substance disintegrated in 2 hours, means 1 से 1/4 जाने में इसको 2 hours लगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, हम लोग को पता है कि 1 से 1/2 हुआ होगा, फिर 1 से 1/4 हुआ होगा, ये 1 hours में हुआ होगा, ये another 1 hours में हुआ होगा। They have asked its half life period in the hours will be, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 1 hours। अदरवाइज आप सिंपली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, राइट, उससे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। दे हैव गिवन अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज द मोस्ट स्टेबलाइज कैटायन। मोस्ट स्टेबलाइज कैटायन, पहला आप देखो NH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, तो इसमें कोई ऐसा रेजोनेंस वगैरह केस नहीं है, तो फर्स्ट इज नॉट गोइंग टू बी मोस्ट स्टेबल। देन सेकेंड की बात कर लें, NH2 देन डबल बॉन्ड, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एंड इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं ऑब्जर्व किया जा सकता। अच्छा, थर्ड स्ट्रक्चर आप देखें, थर्ड में आप क्लियरली देख सकते हो, थर्ड में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे आपका NH2 है। तो ये पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड विथ लोन पेयर, ये पूरा का पूरा सिस्टम रेजोनेंस में कंसीडर किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल। एक बार लास्ट वन भी देख लेते हैं, फोर्थ वन में NH2 है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट, ऐसे कुछ है। तो फोर्थ वन नहीं होगा इस केस में। सबसे मोस्ट स्टेबल हमसे पूछा है, तो थर्ड वन इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। Next see the question number 10. In question number 10 they have asked, in question number 10 the IUPAC nomenclature of following compound, ठीक है, IUPAC nomenclature of following compound। देखा जाए, देखिए ये दे रखा है CN यहाँ पे, then COH, right, then double bond and CH। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? ये हो जाएगा, तो इसके रिस्पेक्ट में 1 इसको दिया जाएगा। अब जो है इसके बाद डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी आएगा, 2 3 4 5 6, तो 5 साइनो 3 फॉर्माइल साइक्लो हेक्स 3 in 1 कार्बोक्सिलिक। यहाँ पे ध्यान रहे ENE रहेगा, बिकॉज ये वंस अगेन जो है वॉवल से नहीं स्टार्ट हो रहा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे इसके लिए स्पेशल सफिक्स होगा, बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने इस कार्बन को नंबरिंग नहीं दिया। तो 5 साइनो 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्स 3 in 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट मीन्स आवर ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। वो फर्स्ट वन आप इनकरेक्ट मत कर लेना, फर्स्ट वन में ENE नहीं दे करके इन दे रखा है। ये तभी हटता है जब यहाँ पे जो यहाँ से अगर कोई वावल से स्टार्ट हो, लेकिन यहाँ कॉन्स्टोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स ENE, दैट विल बी नेम विल बी 5 साइनो 3 फॉर्माइल साइक्लोहेक्स 3 in 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11। इन दिस केस दे हैव गिवन 0.1 मोल ऑफ CH3NH2, दैट इज बेसिकली आवर वीक बेस CH3NH2 KB they have given. This is basically methylamine is mixed with HCl and it is forming CH3NH3 plus Cl. Now initially at T is equal to 0 we have taken how much? This is 0.1 is mixed with 0.08 mole Hc. After time T this will be 0.02
2 एंड दिस विल बी 0 बिकॉज कंप्लीटली ये कंज्यूम हो जाएगा और ये फॉर्म कर लेगा 0.08. So that means it is weak base with the salt of strong acid. Weak base with the salt of strong acid are considered as the buffer solution. Now in the case it is basic buffer, we can consider POH is equal to pKb plus log of salt by base. pKb is Kb they have given, that is 5 into 10 the power minus 4. The pKb is equal to 4 minus log 5 plus log of salt by acid. Salt कितना हो जाएगा 0.08 एंड एसिड बेस कितना हो जाएगा 0.02. दैट मीन्स POH इज इक्वल टू कितना आ जाएगा वैल्यू, ये देख लीजिए 4 minus 0.7 और ये हो जाएगा 0.6. तो 0.6 that means 3.9. POH will be 3.9. pH will be how much? That will be 10.1. pH will be nearly 10.1. That means our और H plus concentration भी कैलकुलेट किया जा सकता है. That will basically give near to 10 the power minus 8 into 10 the power minus 7. ठीक है, आप सिंप्लीफाई कर लेना. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है. pH 10 के नियर है. POH दे हैव गिवन 9.95, तो वहीं गलत हो जाता है बिकॉज POH इज 3.9 ना कि 9.95. इट विल एक्ट एज द बफर सोल्यूशन. यस, एक वीक बेस है विद द सॉल्ट बनाया हुआ है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में. ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी एक्ट एज अ बफर सोल्यूशन. तो फॉर क्वेश्चन नंबर 11 वी कैन कंसीडर ऑप्शन 3. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following is not an MP protic? ठीक है, तो SCO3 की बात करें, राइट, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये चला जाएगा H2CO3 में बाय एक्सेप्टिंग प्रोटॉन एंड बाय लूजिंग प्रोटॉन इट विल कन्वर्ट टू CO3 2 माइनस. सिमिलरली H2PO4 माइनस प्रोटॉन एक्सेप्ट करके ये H3PO4 में कन्वर्ट हो सकता है एंड बाय लूजिंग प्रोटॉन इट कैन कन्वर्ट विथ HPO4 2 माइनस. ठीक है, तो बोथ आर एक्टिंग एज अ एमपी प्रोटिक एनाइन. सिमिलरली HS माइनस की बात करें तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2S में और सिमिलरली प्रोटॉन लूज करके H2 माइनस में कन्वर्ट कर देगा. दिस आल्सो गोइंग टू एक्ट एज अ एमपी प्रोटिक एनाइन. लेकिन HPO3 2 माइनस की बात करें तो ये प्रोटॉन नहीं लूज कर सकता बिकॉज ये प्रोटॉन ये हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ अटैच है ना कि ऑक्सीजन के साथ में, तो ये प्रोटॉन लूज नहीं करेगा बट प्रोटॉन एक्सेप्ट करके H2PO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये एमपी प्रोटिक एनाइन की तरह काम नहीं करेगा, राइट. तो दैट मीन्स फॉर क्वेश्चन नंबर 12 फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट. सी द क्वेश्चन नंबर 13. Question number 13. They have given 0.1 molar solution of 3 salt, that is NaX, NaY and NaZ is pH 7, 9, 11. Which of the following is correct increasing order of their acidic strength? Because basically यहाँ पे salt hydrolysis का केस है. तो salt hydrolysis में pH हम लोग देते हैं 1/2 pKw plus pK प्लस log C, राइट, ये चीज देते हैं. अब यहाँ पे pKw तो सेम होगा, log C दे हैव गिवन इक्वल कंसंट्रेशन. मैं लिख सकता हूँ pH विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pK और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा. तो जिसका pH वैल्यू ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ लिखा जा सकता है इससे रिलेशन निकाल के. तो दैट मीन्स आपका HX सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा क्योंकि इसके लिए जो इसका सॉल्ट है उसका pH वैल्यू ज्यादा है. HX इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड फॉलो बाय HY फॉलोड बाय HZ. दैट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 13. नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. A certain acid base indicator is present into 75% blue at pH 5%. This indicator has the acidic form red and basic form blue. तो that means अगर इसको कंसीडर किया जाए
HIN डिसोसिएटेड एंड फॉर्म H प्लस एंड IN माइनस। हम लोग KIN क्या लिख सकते हैं? KIN इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ IN माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H। तो इनिशियली क्या दे रखा है कि सर्टेन एसिड बेस इंडिकेटर प्रेजेंट 75% ब्लू फॉर्म एट pH इज इक्वल टू 5। ठीक है, pH इज इक्वल टू 5 मीन्स H प्लस कंसंट्रेशन विल बी 10 द पावर माइनस 5। तो वी कैन राइट दिस इज द 10 द पावर माइनस 5 IN माइनस कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जब ये बेस है द एसिड फॉर्म, यहाँ पे लिखा जा सकता है दिस इज बेसिकली 75% एंड दिस इज आवर 25%। ठीक है, जब pH 5, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि pH क्या होगा, एट व्हाट pH इंडिकेटर शो 90% रेड फॉर्म, राइट। 90% रेड फॉर्म मतलब क्या हुआ कि 90% अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा और आपका 10% डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा। तो उस केस में क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि KIN चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं H प्लस कंसंट्रेशन इनटू दिस इज गोइंग टू बी 10 इंटू 90। अब इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो H प्लस कंसंट्रेशन विल बी बेसिकली, अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो देख लो आप, H प्लस कंसंट्रेशन विल बी 10 द पावर माइनस 5 इंटू दिस विल बी बेसिकली 3 टाइम्स, और ये चला जाएगा आपका 99 चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज 27 इंटू 10 द पावर माइनस 5। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, pH इज इक्वल टू 5 माइनस log 27। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 log 3। log 3 की वैल्यू दे हैव गिवन दैट इज 0.3 इंटू 476। तो ये कितना वैल्यू दे देगा? ठीक है, दिस विल बी नियर टू 3.56। दैट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट ही क्वेश्चन नंबर 15। ये भी एक आसान सा प्रॉब्लम, क्या दे रखा है कि द pH ऑफ बफर सोल्यूशन विल बी मैक्सिमम। बफर सोल्यूशन के लिए pH लिखा जाता है pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाई एसिड। ठीक है, अब ये रेंज क्या होता है pH का? रेंज जो बेसिकली हम लोग देख पाते हैं दैट इज pK, जब ये सॉल्ट का कंसेंट्रेशन एसिड का कंसेंट्रेशन 10 टाइम्स होगा तो -1 आएगा ऑफ सॉल्ट, लेस देन pK। इस रेंज में pH वेरी करता है जब सॉल्ट का कंसेंट्रेशन 10 टाइम होगा एसिड, राइट। तो ये इस रेंज में pH, तो मैक्सिमम pH अटेन कर सकता है दैट इज pK प्लस 1, तब ये बफर सोल्यूशन की तरह काम करेगा। दैट मीन्स ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आइसोटॉप्स आर ऑलवेज रेडियोएक्टिव स्पीसीज। जरूरी नहीं है कि रेडियोएक्टिव ही हो, जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन का ले सकते हैं, तो इसमें प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम है। ड्यूटेरियम रेडियोएक्टिव नहीं है, ऑन द अदर हैंड ट्रिटियम रेडियोएक्टिव है, तो जरूरी नहीं है कि दे आर गोइंग टू बी ऑलवेज रेडियोएक्टिव। बीटा रेज आर ऑलवेज निगेटिवली चार्ज। बीटा रे को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक दिस, तो चार्ज इस पे क्या होगा, -1, तो दिस इज सेकेंड वन इज करेक्ट। थर्ड, अल्फा रेज आर ऑलवेज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अल्फा रेज क्या है, डबली चार्जेस हीलियम एटम, इट इज बेसिकली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देन रेडियो एक्टिविटी इज ड्यू टू अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ना, इलेक्ट्रॉन का रेडियो एक्टिविटी से कुछ लेना देना नहीं है, न कि बशर्ते अनस्टेबिलिटी ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूक्लियस की अनस्टेबिलिटी से रेडियो एक्टिविटी का लेना देना है, न कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। दैट मीन्स फोर्थ वन इज आल्सो इनकरेक्ट। सी क्वेश्चन नंबर 17, वी हैव two radioactive isotopes A and B of atomic mass 10 and 20 respectively are mixed in the equal amount by weight. After 20 days, mass ratio are 1:4. Isotopes A has the half life of 10 days, the half life of B. तो क्या लिखा जा सकता है, हमारे पास एक्सप्रेशन है n = n0 e⁻ लैम्डा into t, राइट। इसी को लिखा जा सकता है, या इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो n = n0 e⁻0. या इसको ln2/t½ into t ऐसे लिख लूँ मैं, तो दोनों के लिए लिखते हैं। n के लिए, na के लिए लिखा जा सकता है n0a
ठीक है, या इसको हम लोग n नॉट हम लोग को पता है 1/10 इंटू ई द पावर ln 2/t half of a into 20, right? Similarly we can write nv is equal to 1/20 into e the power ln 2/t half b into 20, right? Now they have given the mass ratio is 1:4. ये ध्यान में रखना, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई का रेशियो नहीं, मास रेशियो 1:4 है, तो वी कैन राइट 1/10 डिवाइड बाई 4/20 इज आवर 2 इसको डिवाइड कर दिया जाए e द पावर ln 2 कॉमन ले लेते हैं 1/t हाफ जिसको पता करना है b के लिए, और दूसरे के लिए t हाफ दे हैव गिवन दैट इज 10 days इंटू 20। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1/2। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ 0.25, ये हो जाएगा ln e द पावर ln 2 1/t हाफ माइनस 1/10 इंटू 20, यही चीज लिखा जाएगा। अब अगर आप चाहो तो इसको एंटी लॉग ले लो, ln 0.25 इज इक्वल टू ln 2 इंटू 1/t हाफ माइनस 1/10 इंटू 20, ठीक है। इसको हम लोग 4 लिख सकते हैं, 1/4 लिखा जा सकता है। ln 1/4 से इसको माइनस साइन थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ln 1/4 मतलब टू द पावर -1 टू द पावर माइनस स्क्वायर, इसे 1/2 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो 2 बाहर -2 आ जाएगा, तो -2 इज इक्वल टू 1/t हाफ माइनस 1/20, ठीक है। 1 या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 20/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/t हाफ इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t हाफ इज इक्वल टू infinity, t half is equal to infinity. Next, see the question number 80, last question. They have given uranium 235 dissociated and form krypton 9236 and some neutron, right? We have to find out another nuclei generated. What we can consider? We can consider x, that is यहाँ पे इसको हम लोग a ले लेते हैं, b लिख देते हैं, इसको x a and b लिख लेते हैं। तो क्या लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू 92 माइनस 36, यही तो लिखा जाएगा। तो दैट मीन्स a इज इक्वल टू 56, ये तो आ गया। b कैलकुलेट करना है, तो b प्लस 92 प्लस 3 इज इक्वल टू 236, ठीक है। तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 236 माइनस 95, दैट विल गिव 1, और यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा, 141। तो 141 हम लोग बेसिकली 56 वेरियम का होगा, तो 56 वेरियम एंड 141, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 80। तो दिस इज आवर DT6। आई होप कि आपने पेपर अच्छे से किया होगा।